السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. محترم حضرات، سامعین و سامعات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی اور سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس حساب سے میرا موضوع سخن ہے لا الہ الا اللہ، معنی، شرائط اور اس کے تقاضے۔ حاضرین اکرامین، لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کا اقرار کیے بغیر کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ایک کافر کو اسلام میں داخلہ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کلمہ کے معنی و مطلب کو جانیں، اس کی شرائط کو جانیں اور اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی جانیں۔ لا الہ الا اللہ کا اس کا اگر حقیقی معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ کلمہ غیر اللہ یعنی دوسرے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سے حقیقی الوہیت کی نفی کرتا ہے اور اسے صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ثابت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو حق ہے، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اسی طرح کا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس اللہ رب العالمین کے علاوہ بس اس کا حساب اسی رب کے پاس ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین کافر لوگوں کو نجات نہیں دیتا، بے شک کافر لوگ اللہ رب العالمین کی نجات سے محروم ہیں۔ پھر کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود حقیقی صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، یہ اللہ رب العالمین کے جو وحدانیت ہے اور اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی پر دلالت کرنے والی یہ آیتیں ہیں۔ یہ کلمہ صرف اور صرف زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار صرف اور صرف زبان سے کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان صرف اور صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور دل میں ان کے لیے کینہ و کپٹ ہو، اللہ رب العالمین کے
अल्लाह तबारक व तआला के लिए शरीक ठहराता हो, कुफ्र और इल्हाद दिल में मौजूद हो, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना ही काफी नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह उसे दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकता, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा उन्हें जहन्नम से नजात नहीं दिला सकता। मुनाफिकीन भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते थे, यहूदी भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, मुनाफिकीन ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, लेकिन वो जहन्नम से नजात नहीं पा सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जहन्नम के सबसे निचले तबके में डालेंगे। कहा कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। क्यों? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, आपके सहाबा के पास आते थे, तो कहते थे कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब इनके पास से जाकर कुफ्फार और मुशरिकीन से मिलते थे तो वो कहते थे कि हम तो यूं ही मोहम्मद के पास गए थे, हम यूं ही उनके साथियों के पास गए थे, हम इस्लाम और दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह यहूदियों भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलमा का इकरार करते हैं, लेकिन ये भी सच्चे दिल से नहीं मानते, चुनांचे ये भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हकीकी माबूद की तरफ दलालत करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका माना हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं। जितने भी माबूदाने बातिल की इबादत की जाती है ये सारे के सारे झूठे हैं, ये सारे के सारे बातिल हैं। उलमाए किराम ने ला इलाहा इल्लल्लाह के 8 शराइत बयान किए हैं। उलमाए किराम ने ला इलाहा इल्लल्लाह के 8 शराइत बयान किए हैं। क्या क्या है? सबसे पहले इल्म, दूसरा यकीन, तीसरा इखलास, चौथा सिद्क, पांचवा मोहब्बत, छठा इनकियाद, कबूल और गैरुल्लाह की इबादत से इनकार। आइए जरा हम इसकी तफसील जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर इल्म क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर इल्म होना, इस कलमे के माना व मफाहिम का इल्म हो जो जहल ला इल्मी के मुनाफी है, और उसका माना बताया जा चुका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। इसलिए अल्लाह के अलावा जितनी भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इबादतें की जाती हैं, उनके सामने सजदा रेज होया जाता है, ये सारे के सारे माबूदाने बातिल हैं और ये झूठे हैं। इसी तरह दूसरा क्या है? यकीन, इस कलमा की हक़ानियत पर यकीन रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? माबूद बरहक है, तो बरहक ही है, उसके अलावा कोई हक नहीं, सब बातिल है, मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाए। इखलास तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरा शर्त इखलास है। कलमा का इकरार इखलास लिल्लाहियत के साथ हो, बंदा अपनी तमाम इबादतों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस कर दे। अगर उसने कोई भी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी नबी, वली, बुजुर्ग, फरिश्ते, जिन्नात वगैरह के लिए की, तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क किया और इखलास की शर्त को तोड़ा। उसके बाद चौथी किस्म है सिद्क। सिर्फ यूं ही ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया और तस्दीक नहीं की, उनको सच्चे दिल से माना नहीं, तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ला इलाहा इल्लल्लाह के जो शराइत हैं उनसे क्या है? परे हो जाते हैं। शर्त ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, साथ ही साथ सिद्क दिल से करे, कलमा का इकरार सदाकत से करे, दिल और जुबान मुआफ़िक़त हो। ऐसा ना हो कि दिल में कुफ्र है और कलमा से जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। दिल और जुबान का इकरार कर, दिल और जुबान का मुआफ़क़त होना जरूरी है। उसके बाद है पांचवी चीज मोहब्बत। पांचवी चीज
मोहब्बत, जब हम इस कलमे का इकरार कर रहे हों, जुबान से इकरार कर रहे हों, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहे हों, तो साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत भी दिलों के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के साथ इस कलमा का इकरार करे, वरना फिर हमारा भी वही हाल होगा जो कुफ्फार और मुल्हिदीन का होता है, कुफ्फार और मुशरिकीन का होता है। जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, इकरार कर लेते हैं, लेकिन हमारा दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत से खाली होता है। हमारा दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत से खाली होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, सूरह आल इमरान की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है। इसी तरह का कि फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरी इताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसी तरह एक और शर्त है, वो क्या है? इनक़ियाद। इनक़ियाद को अगर हम दूसरे लफ्ज में कहे तो अमल। इन सारे शराइत को मानने के बाद, इन सारे शर्तों को जानने के बाद, उन पर यकीन रखने के बाद इस कलमा के माना और मदलूल पर पूरी तरह ताबेदारी करे, उसकी नाजिल करदा शरीयत को दिल से कबूल करे और उस पर ईमान लाए और एक अकीदा हो कि वो हक पर है। अगर जुबान से पढ़ा लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत और उसकी ताबेदारी हुई, शरीयत की ताबेदारी ना हुई, तो इब्लीस और इस जैसे दूसरे इंसानों की तरह काफिर होगा। सारी चीजें मान लिए, इस्लाम कबूल कर लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लिए, सारी चीजें कर लिए, अगर अमल ना हो तो वो भी काफिरों में शुमार होगा। सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, ना उनके मतलब को जाना, ना उनके मफहूम को जाना, ना उनके शराइत को जाना, ना उनके तकाजे को जाना, सारी चीजों को छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया जुबान से, दिल से ना हो, तो इनका हाल भी वही होगा। इसके बाद एक और शर्त है कबूल। इस कलमा के तकाजों को दिल और जुबान से कबूल करे। तकाजा क्या करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत की जाए। तकाजा क्या करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये की है, उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और फरामीन की ताबेदारी की जाए, करना होगा। अगर इसके ऊपर राजी हो तो उसका इल्तिजाम भी लाजिम होता है कि उनकी ताबेदारी करे, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को और उनके अवामिर को बजा लाया जाए। आठवीं चीज, जो आखिरी चीज है शराइत में से, वो क्या है कि गैरुल्लाह की इबादत से इनकार करना। गैरुल्लाह की इबादत से इनकार करने का मतलब यह है, जब दायरा इस्लाम में आ गए, इस्लाम के दायरे में आ गए, जब हम मोमिन बन गए, मुसलमान बन गए, तो उसके बाद गैरुल्लाह की जितनी भी इबादतें हैं, चाहे वो किसी भी तरह की इबादतें हो, चाहे वो कुर्बानी करना हो, नजर नियाज करना हो, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा उसकी इबादत करना हो, सारी की सारी चीजों को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए ही मानना होगा। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फमन यकफुर बित्तागूत, जिन्होंने तागूत का इनकार किया, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया, फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल उस्का, गोया कि उसने मजबूत कड़े को थाम लिया, मजबूत कड़े को थाम लिया। ला इनफिसाम लहा, वो कभी भी टूटेगी नहीं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। गोया कि इन शराइत से इनका तकाजा मालूम होता है। तकाजा ये होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिए, गैरुल्लाह की इबादत से इनकार। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम और अवामिर नाजिल किए हैं शरीयत में, उनकी पाबंदी करना होगा। मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी होगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। कि कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि तुम मेरी
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप लोगों से कह दीजिए तुम मेरी इताअत करो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद तुम्हें मोहब्बत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करेगा। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को भी, ला इलाहा इल्लल्लाह के शरायत को भी उलमा ने बयान कर दिया है। अब मोमिनों पर जरूरी है कि मोमिनीन इनके माना को जान के, इनके माना को हकीकी तौर पर समझकर और इनके शरायत और इनके तकाज़ों को जानकर शरीयत इस्लामिया में दाखिल होते हुए या फिर अगर ईमान वाले हैं तो इनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें।